معزز و محتشم سامعین ذی وقار، اعوذ باللہ من آج الشیطان زکوٰۃ کی الرجیم فرضیت کے حوالہ سے بسم بات ہوگی اللہ الرحمن الرحیم کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہے اور کتنی مقدار کے اندر مال ہو تو زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، اور چند باتیں جو عوام کے اندر پائی جاتی ہیں، چند سوالات زکوٰۃ کے حوالہ سے، اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے دیکھیے جی کہ نصاب کے لیے چند چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی ہے کہ سونا۔ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، 7.5 تولے یا اس سے زائد سونا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ دوسری ہے چاندی۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تیسری ہے روپیہ، پیسہ، کرنسی، پرائز بانڈ یا روپے کی پیسے کی کوئی بھی شکل ہو، اگر وہ اس نصاب کو پہنچ جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں یا اس سے زائد، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت، یعنی کہ مال لیا ہو بیچنے کی نیت سے، ایسے مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ پانچویں چیز ہے حاجت اصلیہ سے زائد مال۔ اب سونے کے حوالے سے سماعت فرما لیں کہ سونے کی مقدار جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے جی کہ جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کہ 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہمارے پاس زکوٰۃ واجب ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے وہ چاندی کا بھی ہے، اور اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی مقدار میں پیسہ، روپیہ، مال تجارت کچھ بھی ہے، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب سونے کا ریٹ، آج کا ریٹ 5,22,000 سے اوپر ہے، اور اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا اور چاندی کچھ تھوڑی سی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور چاندی کا حساب لگایا جائے تو 52.5 تولہ چاندی یہ بنتی ہے 5,82,855 روپے کی آج کے دن کے حساب سے، یعنی آج 12 مارچ، آج کا جو ریٹ ہے سونے اور چاندی کا وہ یہ ہے کہ سونا 5,22,000 روپے 1 تولہ ہے، اس سے زائد رقم ہے، اور چاندی جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی یہ بنتی ہے 5,82,855 روپے سے زائد، یا 5,83,000 سمجھ لیں آپ۔ یوں سمجھیے کہ جس بندے کے پاس 5,83,000 روپے ہے تو ایسے بندے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ وہ صرف روپے کی صورت میں ہو یا کچھ پیسے ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، ان سب کو ملا کے اگر یہ نصاب بن جاتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں پیسے بن جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ضرورت کے لیے سامان رکھا ہے، تو حاجت اصلیہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی ضروریات کی ہیں،
मिसाल के तौर पे मोबाइल किसने रखा है 5 लाख रुपए का, तो ये इसकी जरूरत है, इस पे ज़कात नहीं। मकान है जिसमें रहता है, ये 5 करोड़ का मकान है, तो इसके ऊपर ज़कात नहीं है। गाड़ी उसके पास है 5 करोड़ की, 2 करोड़ की, तो इसके ऊपर भी ज़कात नहीं है, इसलिए कि ये इसकी जरूरत की चीजें, जरूरियात की चीजें छोड़ के, यानी कि हाजत असलिया जो जरूरत की चीजें हैं, इन्हें छोड़ के बाकी जो माल है उसके ऊपर ज़कात होगी। अब सोना और चांदी के हवाले से इस बात फरमा लें कि ये जेवरात अगरचे इस्तेमाल के अंदर हों तब भी इनकी ज़कात वाजिब है। एक सवाल करते हैं जी कि जरूरत की चीजों में से ये सोना चांदी भी औरतें पहनती हैं, तो ये जरूरत है उनकी? तो ये जरूरत नहीं है, ये ज़िबाइश है, जीनत है। अगरचे ये पहन रही हूं तो ऐसी सूरत के अंदर भी ज़कात देना वाजिब है। एक और सवाल होता है जी कि ज़कात औरत कैसे दे, वो तो कमा नहीं होती, तो उसकी ज़कात किसके ऊपर है? तो याद रखिएगा, औरत अगर उसके पास इतना सोना है या इतनी चांदी है जो निसाब को पहुंच जाती है, मिसाल के तौर पे आज के दिन का हिसाब लगाते हैं, किसी के पास 6 लाख रुपए या 6.25 लाख रुपए की मालियत के पैसे, जेवरात, सोना या चांदी है, तो ऐसी औरत के ऊपर ज़कात देना वाजिब है। अगर उसका शौहर दे दे तो तब भी उससे ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन उस औरत में वाजिब है क्योंकि वो औरत खुद साहिब निसाब है। अब सवाल ये है जी कि वो कैसे अदा करे, पैसा तो नहीं उसके पास। तो शरीयत ये कहती है कि जो चीज उसके पास मौजूद है उसे बेचकर उससे ज़कात अदा कर सकती है। अगर चांदी है या सोना है तो सोने और चांदी को सेल करके बेच के जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात उसकी अदा करे। ऐसे ही अगर किसी ने घर खरीदा या प्लाट खरीदा इस नियत से कि हमने इस घर के अंदर रहना है, या प्लाट खरीद रहे हैं तो प्लाट खरीदते हुए नियत ये है कि हम इसके ऊपर घर बनाएंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर ऐसे प्लाट के ऊपर, ऐसे घर के ऊपर ज़कात नहीं है। रहना हाजत असलिया है उसकी कि घर के बगैर गुजारा नहीं है। अगर कोई प्लाट लिया है, अगर एक कनाल का लिया हुआ है, उसकी नीयत यह है कि इस पे घर बनाएंगे और इस पे रिहाइश रखेंगे, तो ऐसी सूरत के अंदर उस प्लाट के ऊपर ज़कात नहीं है। या घर खरीदा है, एक घर में रहते हैं, दूसरा घर खरीदा है जी कि फैमिली बड़ी हो गई है, अब उसके अंदर शिफ्ट होना है, तो ऐसी सूरत के अंदर रिहाइश के रहने वाले घर के ऊपर भी ज़कात वाजिब नहीं है। एक सवाल ये होता है जी कि बताएं कि जो घर किराए पे दिए हुए हैं उनके बारे में क्या ज़कात का निसाब है? तो याद रखिएगा, जो घर किराए पे दिया है 2 सूरतें हैं इसकी। अगर तो किराए पे दिया हुआ घर, उससे जो किराया आता है, रकम आ रही है, अगर उसे सेव करते हूं तो ऐसी सूरत के अंदर जितनी रकम सेव करेंगे उतनी रकम पे साल गुजरने के ऊपर ज़कात वाजिब होगी, ना कि उस घर की मालियत के मुताबिक। घर किराए पे दिया हुआ है तो घर की मालियत के मुताबिक ज़कात नहीं होगी, बल्कि ज़कात किस पे होगी? जितना किराया आ रहा है, अगर उस किराए से आपने सेव किया, पैसा इतना हुआ कि निसाब को पहुंच गया, तो ऐसी सूरत के अंदर उस घर के किराए के ऊपर ज़कात होगी, ना कि उस घर के ऊपर। दूसरी सूरत यह है कि मकान किराए पे दिया है लेकिन जो पैसा आ रहा है वो घर की जरूरत में इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसी सूरत के अंदर उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि प्लाट लिया किसी ने कारोबार की नीयत से, तो जब प्लाट या कोई भी चीज ये माल तिजारत में आ जाता है, खरीदो फरोख्त की नीयत से लिया कि आगे बेचना है मैंने, तो जितनी मालियत होगी उसके मुताबिक 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% ज़कात निकालना वाजिब है।
एक और सूरत है कि जब लिया था, नीयत ये थी कि मैंने बेचना है, बाद में नीयत तब्दील हो गई कि वह घर बनाएंगे। अगर बाद में नीयत घर की हो गई तो ऐसी सूरत के अंदर भी उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन महज नीयत कर लेना खरीदते वक्त खरीदा बेचने के लिए, लेकिन ज़कात से बचने की नीयत कर ली कि भाई घर बनाएंगे, और पता भी उसे है कि सिर्फ ज़कात से बचने के लिए मैं कर रहा हूं, तो ऐसी सूरत में गुनहगार होगा वो। अगर बेचने की नीयत से लिया है, घर है, बेचने की नीयत से लिया है, तो जितनी मालियत का घर है उतना हिसाब लगा के 40वां हिस्सा उसमें से यानी कि 2.5% ज़कात देना ये वाजिब है। और अगर प्लाट खरीदा, घर खरीदा रहने के लिए, या प्लाट खरीदा कि बच्चों के लिए खरीदा, अब एक घर में रह रहे हैं, दूसरा घर प्लाट खरीद लिया बच्चों के लिए, तो ऐसी सूरत के अंदर भी उस पर ज़कात नहीं है। यूं समझिए कि हाजत असलिया के अलावा माल तिजारत के ऊपर ज़कात है। ऐसे ही किसी ने दुकान खरीदी और दुकान किराए पे दे दी, तो जितना किराया दुकान से आ रहा है उसको जमा अगर कर रहा है, अगर तो घर की जरूरत उसके मुताबिक इस्तेमाल हो रहा है, मिसाल के तौर पे किसी ने दुकान किराए पे दी है, 50,000 रुपये किराया आ रहा है, अब उसके घर का खर्चा हर महीने का 50,000 रुपया है, उसके पास इन्वेस्ट नहीं हो रहा, तो ऐसी सूरत के अंदर उस दुकान के ऊपर भी और उसके किराए पे ज़कात नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि किसी ने दुकान खरीदी, इस नीयत से खरीदी कि मैं खुद इसमें कारोबार करूंगा, तो अगर वो उसके अंदर कारोबार करता है, दुकान पे खुद बैठ के कारोबार कर रहा है, तो उस दुकान की मालियत पे ज़कात नहीं होगी, बल्कि जो माल तिजारत रखा है उस माल तिजारत के ऊपर ज़कात होगी। यानी कि जरूरत का घर है उस पर ज़कात नहीं, जरूरत की दुकान है उसके ऊपर ज़कात नहीं, जरूरत की गाड़ी है उसके ऊपर नहीं। अलग समझिए कि जो चीजें हाजत असलिया है, यानी कि जो इंसान की जरूरत है, जिसके बगैर उसका गुजारा नहीं चल रहा, ऐसी चीजों के ऊपर ज़कात नहीं है। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है हाजत असलिया के अंदर आएगा, और माल तिजारत भी हाजत असलिया के अलावा है, इसके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। अब एक और सवाल होता है जी कि मुझ पे कर्जा है तो मैं ज़कात दे सकता हूं कि नहीं। इस दौर के अंदर कोई भी ऐसा ताजर नहीं जिसके ऊपर कर्जा ना हो। महज ये बात कह देना कि मुझ पे कर्जा है तो ज़कात कैसे दूं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब देखना ये होगा कि कर्जा कितना है, लेना कितना है और देना कितना है, और उसके बाद देखना यह होगा कि माल तिजारत जो दुकान में मेरे पास जो पड़ा है ये माल कितना है, तो उस माल के ऊपर भी ज़कात होगी। महज ये क्या देने से कर्जा है, मिसाल के तौर पे किसी ने किसी का कर्जा देना है 5 लाख, अब लेना उसमें है 20 लाख रुपया, माल तिजारत भी मौजूद है उसके पास, तो ऐसी सूरत के अंदर ज़कात देना उस पर वाजिब है। ये थी चंद सूरतें ज़कात की। दुआ है मालिक कायनात से जो कुछ बयान किया आपने सुना, मेरा मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।